یہ ہے 4,500 साल पुराना इजिप्ट جس کے درمیان دنیا کا سب سے لمبا دریائے نیل بہتا ہے، اور یہ دور ہے فرعون خوفو کا جو مصر کے ایک بہت بڑے شکتیشالی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی عمارت بنانے کا سوچ رہے تھے جو پہلے نہ کسی نے بنائی اور نہ بعد میں کوئی بنا سکا۔ اس نے ملک کے سبھی کسانوں، کاریگروں، ہنرمند لوگوں کو مصر کے دور دراز علاقوں سے بلا کر ایک جگہ اکٹھا کیا۔ ان کے رہنے، کھانے پینے اور علاج کا انتظام کر کے انہیں دیش کے سب سے بڑے پروجیکٹ پہ لگا دیا۔ لیکن ایک منٹ، یہ 2.5 ٹن وزنی پتھر بنا جدید مشینری کے سینکڑوں فیٹ اوپر رکھے کیسے گئے؟ ان پیرامڈز کو کن مٹیریل سے بنایا گیا؟ وہ مٹیریل لایا کہاں سے گیا؟ ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور وہ کیا ہے جو ہم اب تک نہیں جان سکے؟ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور میونوگرافی ان وشال سٹرکچرز کے کتنے راز افشا کر چکا ہے؟ کیوں آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرامڈز انسان کی ایجاد نہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم جانیں گے اس ڈاکومنٹری میں۔ آئیے چلتے ہیں مصر کی سرزمین پر اور پیرامڈز کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے آج کا مصر۔ یہ دریائے نیل ہے اور یہاں دارالحکومت قاہرہ کا شہر آباد ہے۔ کیپٹل کائرو سے 13 اور دریائے نیل سے بس 8 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں گیزا کے یہ مشہور پیرامڈز۔ یہ اتنے فیمس ہیں کہ سالانہ 80 سے 90 لاکھ لوگ دنیا کے ہر کونے سے یہاں سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، جن کے آنے سے ایجپٹ کو بلینز آف ڈالرز کا منافع ہوتا ہے۔ تبھی تو صرف ٹورزم انڈسٹری ملک کا 10% جابز کریٹ کرتا ہے۔ اتنا اہم ہونے کی وجہ سے ایجپٹ نے اس جگہ کو پریزرو رکھنے کے لیے HCA کے نام سے ایک باقاعدہ آرگنائزیشن بھی بنا رکھا ہے۔ نہ صرف ایجپٹ بلکہ اس لیے کہ یہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری یونیسکو پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آج تو ان پیرامڈز کی وجہ سے ملینز آف ٹورسٹ ایجپٹ کا رخ کرتے ہیں، جس سے بلینز آف ڈالرز کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ مگر دوستوں، 4,500 سال پہلے پیرامڈز کو اس وجہ سے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ لاکھوں ٹورسٹ سے اربوں کی آمدنی ہوگی۔ تو ان کو بنانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ دوستوں، دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا آفٹر لائف پہ یقین تھا، اور اس لیے ان کے بادشاہ ان پیرامڈز میں اپنا جسم محفوظ کرنے سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود بھی ایک دن مرنے کے بعد ان اونچے پیرامڈز کے ذریعے آسمانوں کے خداؤں میں شامل ہوں گے۔ اور ان کے لوگ بھی شوق سے پیرامڈز میں کام اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ جب ان کا بادشاہ ان آسمانی خداؤں میں شامل ہوگا تب وہ اپنی برادری کے لیے اچھے فیصلے کر پائے گا۔ خیر، اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ پیرامڈز کو بنانا اب ان کے لیے ایک ریلیجیس ڈیوٹی بن چکی تھی۔ مگر دوستوں، کیا بس خواہش کرنے سے یہ ہیوج سٹرکچرز وجود میں آ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کام اتنا آسان ہوتا تو یہ بلڈنگ تقریباً 4,000 سال تک ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ نہ ہوتی۔ 4th ڈائنیسٹی کے بادشاہ خوفو اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وہ جو کچھ اپنے خیال میں بنا چکا ہے اسے حقیقت بنانا کتنا مشکل ہے۔ مگر دوستوں، جب عزم، لگن، محنت اور جنون ساتھ میں مل جائیں تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کنگ خوفو نے گیزا کے مقام پر تقریباً 30,000 لوگوں کے رہائش، کھانے پینے اور علاج کا انتظام کر کے ایجپٹ کے کونے کونے سے بہترین آرکیٹیکچرز، انجینئرز، میسنرز اور ٹول میکرز کو اکٹھا کیا اور مزدوری کے لیے ملک کے کسانوں کو بلا کر اس وقت کے کاریگروں کے سپرد کیا، اور یہ لوگ گروپس میں بٹ کر آرگنائز ورک فورس کا شکل اختیار کرنے لگے۔ اب جب کہ خوفو کے والد سنیفرو کے رائٹ پیرامڈ میں جو غلط کیلکولیشنز کے بنا پر اس پیرامڈ کو بینڈ کرنا پڑا، اب یہ اس غلطی سے سیکھنے کا ٹائم تھا۔ اب وہ عظیم پیرامڈ بننے جا رہا تھا جو تاریخ میں امر ہوگا، وہ اہرام جو مصر کے قوم کی وقار کو بلند کرے گا۔ مصر کے واسیوں کی نگاہیں اس پروجیکٹ پر ٹکی ہوئی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ ناکام ہوا تو دنیا کیا کہے گی، آنے والے لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ خوفو کی ذہانت کا امتحان تھا، کاریگروں کے مہارت کا امتحان تھا، مصر کے قوم کا امتحان تھا۔ جب خوفو کے سامنے پہلے پتھر کو رکھا گیا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ پہلے پتھر نے تو اپنی جگہ دیکھ لی، امید ہے آخری پتھر بھی وہ وہاں اوپر اپنا جگہ دیکھ لے گا۔ دوستوں، اب اس پروجیکٹ کو چند سال گزر چکے۔ پہلے کاریگروں نے گراؤنڈ کو لیول کیا، پھر ایک ایک کر کے زمین کو بھاری بھرکم پتھروں سے ڈھک لیا۔ اس کام میں چند سال لگے۔ کسان ایگریکلچرز منتھ میں کھیتی باڑی کرتے اور جب گرمیاں آتی اور فصل لگانا ناممکن ہو جاتا تب پیرامڈز میں کام کرتے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کام رک جاتا تھا۔
पत्थर तराशते थे, टूल मेकर्स इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी औजार बनाते थे, आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन पर गौर व फिक्र करते थे और ये सब कुछ वर्कर्स ग्रुप में ऑर्गेनाइज तरीके से अपने अपने काम में मगन थे। सब कुछ अब तक तो सही चल रहा था कि एक ऐसा मसला आन खड़ा हुआ कि हर काम करने वाला सोच में पड़ गया कि हमने ज़मीन पर से तो उन 10 टन वजनी पत्थरों को घसीट कर किसी तरह अलाइन कर दिया, मगर अब इन हैवी रॉक्स को ऊपर कैसे ले जाया जाए? दोस्तों, एशियन इजिप्शियंस ने तो इस मसले का हल निकाल ही लिया, मगर कैसे? इस सवाल का जवाब पोशीदा है एक्सपर्ट्स के इन 3 थ्योरीज: जिगजैगिंग रैम्प थ्योरी, स्पाइरल रैम्प थ्योरी, स्ट्रेट रैम्प थ्योरी। चलिए वन बाय वन इन थ्योरीज को 3D एनिमेशन के जरिए समझते हैं। पहला ख्याल ये है कि पिरामिड के भारी भरकम पत्थरों को स्ट्रेट रैंप के जरिए ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाया गया। ये पिरामिड की पहली मंजिल बंद कर तैयार हो गई है और अब इन हुज रॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए एक स्ट्रेट रैंप बनाया गया जिसका स्लोप तकरीबन 10 डिग्री था। मतलब अब 1 मीटर ऊंचाई के लिए इस रैंप को 5 मीटर लंबा करना पड़ेगा। यानी दी ग्रेट पिरामिड का स्ट्रेट रैंप को एक्सटेंड कर करके आखिरी रोज तक पहुंचते ये 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि इस रैंप का स्लोप 10 नहीं 7 डिग्री तक। इस तरह तो कैलकुलेशंस इस रैंप को लगभग 3 किलोमीटर लंबा बताते हैं। आखिर ये स्ट्रेट रैंप 2.5 किलोमीटर का हो या 3 किलोमीटर का, दूसरे थ्योरीज के कंपैरिजन से पत्थरों को ऊपर ले जाना तो काफी आसान होगा, मगर इस अकेले रैंप को बनाने में खुद पिरामिड से भी ज्यादा पत्थरों की जरूरत होगी। खैर, अब चलिए समझते हैं दूसरी थ्योरी को। दोस्तों, जिगजैगिंग रैंप थ्योरी कहती है कि पिरामिड के एक साइड पर इस तरह जिगजैगिंग रैंप्स बनाए गए, ये पिरामिड के बैरूनी दीवार के साथ ही अटैच कर दिए गए। जिस पेस से पिरामिड ऊंचा होता गया ये भी बढ़ते गए। और तीसरा ख्याल ये है कि वो ना तो स्ट्रेट रैंप्स थे और ना ही जिगजैगिंग, बल्कि वो स्पाइरल रैंप्स थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रैंप्स तो पिरामिड से ही अटैच थे, मगर जिगजैगिंग नहीं, सर्कुलर राउंड तरीके से। यानी एक पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए इस पिरामिड के चक्कर काटने होते थे। ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों थ्योरीज में कोई तो सच होगा, मगर कौन सा? लेकिन ये भी हो सकता है कि जरूरत के हिसाब से इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया गया हो। यानी शुरू में स्ट्रेट रैंप, क्योंकि अब चंद रोज के लिए यही बेहतर तरीका था। फिर जब ये थोड़ा ज्यादा लंबा होने लगे तो फिर जिगजैगिंग, आखिर में राउंड रैंप्स के जरिए ही इफिशिएंटली ये काम हो सकता था। तो फाइनली दोस्तों, अब हम ये तो जान चुके हैं कि इन हुज रॉक्स को कैसे ऊपर ले जाया गया, मगर अब हम ये जानेंगे कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए कौन कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए और वो कहाँ कहाँ कितनी दूर से लाए गए। द ग्रेट पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से हर एक पत्थर का एवरेज वेट 2.5 टन था। यानी खुफू पिरामिड का कुल वजन 60 लाख टन बनता है। पिरामिड में ज्यादातर लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया, जो कि पिरामिड के पास ही मौजूद था, हार्डली साइड से 1 किलोमीटर दूर। इससे ही तकरीबन पूरा पिरामिड बनाया गया, मगर एक और किस्म का लाइमस्टोन भी पिरामिड में इस्तेमाल हुआ। वो पिरामिड की लोकेशन से 13 किलोमीटर दूरी पर तूरा के मकाम से लाया गया। ये तूरा लाइमस्टोन पिरामिड के मेन स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद आउटर केसिंग में इस्तेमाल हुआ और आखिर में इसे अच्छे तरीके से पॉलिश किया गया, जिसकी वजह से ये दिन में चमकता दमकता कुछ इस तरह दिखाई देता। दोस्तों, पिरामिड को बने हजारों साल गुजर चुके हैं, इसलिए इनका वो तूरा लाइमस्टोन वाला हिस्सा खत्म हो गया है। बस खाफरे पिरामिड के टॉप पर इस केसिंग का बचा कुचा हिस्सा अब भी मौजूद है। दोस्तों, लाइमस्टोन के इन 2 किस्मों के अलावा एक और पत्थर पिरामिड में इस्तेमाल हुआ, रेड ग्रेनाइट, जिसे 800 किलोमीटर दूर अस्फान से इंपोर्ट किया गया। इस पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स दरियाए नील के जरिए कश्तियों में लाद कर लाए गए। आप सोच रहे होंगे कि पत्थरों की तो कमी यहाँ पास में भी नहीं थी, फिर इतनी दूर से इसी पत्थर को ही क्यों लाया गया? इस सवाल का जवाब है ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ, अस्फान का रेड ग्रेनाइट लाइमस्टोन से कहीं ज्यादा पायदार होता है, इसलिए इसे पिरामिड के खास चैम्बर्स के लिए दूर से लाया गया। 2 बड़े पत्थरों को जोड़ने के लिए जिप्सम बेस्ड मोर्टर का इस्तेमाल किया गया। इसको कैसे बनाया गया ये तो हम नहीं जानते, मगर हम ये जरूर जानते हैं कि इसकी क्वालिटी जबरदस्त थी, तभी तो हजारों साल बाद भी ये खराब नहीं। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि आज का पिरामिड बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इसे बनाया गया था, तो ये बात इतनी सच नहीं होगी।
क्योंकि वो अपर केसिंग शाइनिंग लाइमस्टोन का तो बचा कुचा हिस्सा काफरे पिरामिड पर नजर आता है, मगर एक ऐसी चीज भी है जो इन सब में मिसिंग है, पिरामिडियन। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पिरामिड के टॉप पर पिरामिड के शेप का ही कैपस्टोन रखा गया था। ये इन 3 पत्थरों में से किसी एक से बनाया गया होगा, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बसाल्ट। कहानियों में इसे गोल्डन, ग्लाइडेड या फिर इलेक्ट्रूम का बताया जा रहा था, मगर इस बात की कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता शवाहिद इस तरफ इशारा देते हैं कि 4th डायनेस्टी में सुनहरे रंग देने का रवाज नहीं था, ये 5th डायनेस्टी में शुरू हुआ। साइड से ट्रायंगल जैसा दिखने वाला ये पिरामिड ऊपर से स्क्वायर जैसा दिखता है। अब आप कहोगे स्क्वायर जैसा, ये तो पूरा स्क्वायर ही है। दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हजारों सालों से इसे स्क्वायर ही समझा जा रहा था कि वर्ल्ड वार के समय जब ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट पिरामिड के ऊपर परवाज कर रहा था और इत्फाकन उस वक्त सूरज की रोशनी पिरामिड के बिल्कुल साइड पर लग रही थी और इसके बीच से एक हल्का सा साया दिखा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर साया ना दिखता। इससे ये मालूम हुआ कि पिरामिड 4 नहीं 8 साइडेड है, मगर ये इतना कम कॉन्केव है कि कोई पिरामिड के पास खड़ा शख्स भी ये फर्क नोटिस नहीं कर पाता। दोस्तों, चूंकि एज सीन फ्रॉम अबव ये तीनों पिरामिड्स आसमान के मशहूर 3 सितारों ओराइन बेल्ट से मैच करते हैं, इसीलिए ये समझा जाता है कि इन्हें डिलिबरेटली जानबूझकर इस तरह बनाया गया। और जो ये थ्योरीज पेश करते हैं, ये कहते हैं कि उस जमाने में ये समझा जाता था कि उन सितारों में गॉड ओरिसिस की रूह मौजूद है, जो कि जिंदगी और मौत के खुदा माने जाते थे। इसलिए इन तीनों पिरामिड्स को ओराइन बेल्ट जैसा बनाया गया। खैर, 4500 साल पुरानी तारीख हमें वर्ड बाय वर्ड तो नहीं मालूम, मगर अगर आज हम इन तीनों पिरामिड्स को लें और ओराइन बेल्ट के तीनों सितारों से इन्हें मैच करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह मैच नहीं हो रहे। तीसरा पिरामिड मिनक्वारे तीसरे सितारे मिनटका को मिस कर रहा है। खैर, जैसा कि आप जानते हैं कि हजारों सालों में स्टार्स के पोजीशंस थोड़े चेंज होते रहते हैं। 4500 साल पहले भी ये तीनों स्टार्स तीनों पिरामिड से परफेक्टली अलाइन नहीं थे, मगर आज के दौर के हिसाब से वो काफी मिलते जुलते जरूर थे। तो आखिर में सवाल ये है कि एशियंट इजिप्शियंस ने वाकई इन स्टार्स को देखकर पिरामिड्स बनाए? पता नहीं, लेकिन एक दौर बहरहाल जरूर था, 10,500 BCE, आज से तकरीबन 12,500 साल पहले, जब इन स्टार्स की अलाइनमेंट तकरीबन पिरामिड्स जैसी ही थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें कैसे मालूम कि पिरामिड्स 4500 साल पुराने हैं? ये क्यों नहीं हो सकता कि पिरामिड्स 12500 साल पुराने हैं? वेल, ये इसलिए कि हमने 2 सोर्सेज से ये कंफर्म किया हुआ है कि पिरामिड्स का एज 4500 साल ही है। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से, जैसे इनके अंदर कहीं कहीं हमें इन बादशाहों के नाम मिले हैं जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उनके बादशाहत के दौर की मुख्तसर दास्तानें दर्ज हैं, जिनसे इनके दौर का कुछ अंदाज़ा होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अलावा एक साइंटिफिक तरीका भी है, जहां से हमने ये कंफर्म किया कि पिरामिड्स 4500 साल ही पुराने हैं, और वो साइंटिफिक मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग। दोस्तों, कार्बन की 3 किस्में हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हमारे एटमॉस्फेयर में 98.9% कार्बन 12 पाया जाता है, बस 1% कार्बन 13, और फिजा में कार्बन 14 की तादाद बहुत ही कम है। कार्बन 12 और 13 2 स्टेबल आइटम हैं, मगर कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसी कार्बन की वजह से हम ये जान पाए हैं कि पिरामिड को कब बनाया गया। आइए जानते हैं कैसे। जब कोई इंसान, जानवर या दरख्त जिंदा होता है तो उसके जिस्म में इतना कार्बन 14 होता है कि जितना एटमॉस्फेयर में मौजूद है, क्योंकि ये एक्सचेंज होता रहता है। मगर जब ये मर जाता है तो उस दिन से कार्बन 14 डिके होना शुरू हो जाता है। 1949 में मिलाद ग्लेवरी नामी साइंटिस्ट ने रेडियो कार्बन डेटिंग को डेवलप किया, जब इसे ये मालूम हुआ कि कार्बन 14 एक प्रिडिक्टेबल नॉन रेट से डिके होता है। दोस्तों, कार्बन 14 को इसके हाफ लाइफ से मेजर किया जाता है, और वो हाफ लाइफ है 5730 साल। यानी हर 5730 साल बाद कार्बन 14 का आधा हिस्सा खत्म होता है। मतलब 5730 साल अगर किसी फॉसिल को हुए
तो उसमें 50% कार्बन 14 खत्म हो जाएंगे। 5730 साल फिर गुजरने पर बकाया 50% में से आधे यानी 25% और ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह हर 5730 साल बाद उस फॉसिल में मौजूद कार्बन 14 की बची हुई तादाद आधी होती जाएगी, और जब वो फॉसिल 50,000 साल पुराना हो जाए, मतलब कि उसकी 9 हाफ लाइफ गुजर गई हों और उसमें सिर्फ 0.2% कार्बन 14 बच गए हों, तब के बाद ये मेथड इनइफेक्टिव होगा। दोस्तों, पिरामिड के नज़दीक ढूंढे गए पुराने लकड़ियों को जब रेडियो कार्बन डेट किया गया तो 40 से 45% कार्बन 14 डिके हो गए थे। इससे ये मालूम हुआ कि कार्बन 14 का 0.8 हाफ लाइफ पूरा हुआ है, यानी ये 4500 साल पुराना है, मतलब 2500 BCE से 2600 BCE के दरमियान इसे बनाया। दोस्तों, अब हमें ये तो इल्म है कि पिरामिड्स कितने पुराने हैं। आइए अब ये जानते हैं कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स के अंदर आखिर है क्या। सबसे पहले ग्रेट पिरामिड से शुरू करते हैं। दोस्तों, खुफू पिरामिड को जब बनाया गया तो एक एंट्रेंस छोड़ा गया था, मगर हजारों साल बाद के लोगों ने एक और एंट्रेंस इसी के नीचे ही बना डाली, और वजह सिर्फ एक थी, पिरामिड को लूटना। अब वो क्या चोरी करना चाहते थे ये तो हम कुछ देर बाद जान लेंगे, मगर ये बात तो वाज़ेह है कि मेन एंट्रेंस बंद था, तभी एक दूसरा एंट्रेंस बनाना पड़ा जिसे आज रॉबर्स टनल कहा जाता है। अब मेन एंट्रेंस को क्रॉस करने के बाद एक डिसेंडिंग पैसेज आता है, और रॉबर्स टनल के एंट्रेंस को क्रॉस करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल सीधा रास्ता जाता है। चंद मीटर्स बाद अब यहाँ दो रास्ते आते हैं। अब ये दोनों रास्ते जाते कहाँ हैं ये जानते हैं। डिसेंडिंग पैसेज नीचे सबटरेरियन चैम्बर्स तक लेके जाता है। ये चैम्बर तकरीबन 100 फीट पिरामिड के ग्राउंड लेवल से भी नीचे है, और अगर हम वापस अपने पहली जगह जाके असेंडिंग पैसेज पे चढ़ना शुरू करें तो हम पहुंचेंगे एक ऐसी जगह पे जहां फिर से दो रास्ते मिलते हैं। एक पहली वाली दिशा को जाता है यानी ऊपर की तरफ, और दूसरा सीधा हॉरिजॉन्टली जाता है। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल पैसेज से चलना शुरू करें तो हम पहुंचते हैं क्वींस चैम्बर पर। अब क्वीन चैम्बर के अंदर हमें क्या मिला वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी इस पिरामिड की सैर करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगर हमने हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि पहला वाला रास्ता जो कि ऊपर ही जा रहा था वो चूज़ किया होता तो हम पहुंचते ग्रैंड गैलरी पे, और ग्रैंड गैलरी को क्रॉस करने के बाद हमें मिलता ये 4500 साल पुराना तरीका जिसके ज़रिए रॉबर्स को किसी ख़ास लोकेशन से रोकने की कोशिश की गई थी। इसे कहते हैं एंटी चैम्बर। दोस्तों, अब हम इस चैम्बर में इंटर होने वाले हैं जिसके लिए ये पूरा पिरामिड बनाया गया था। इस चैम्बर को किंग्स चैम्बर कहा जाता है। किंग्स और क्वींस चैम्बर में हमें मिले हैं दो एयर शाफ्ट्स जो कि एक दूसरे के अपोजिट साइड पे बनाए गए। किंग्स चैम्बर के ये शाफ्ट्स तो पिरामिड के बाहर निकलते हैं, मगर क्वींस चैम्बर के एयर शाफ्ट्स रास्ते में ही रुक जाते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि इन दोनों चैम्बर्स में एम्प्टी सरकोफेगस मिले हैं, मगर किंग्स चैम्बर के ऊपरी हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीविंग चैम्बर्स भी किसी तरह ढूंढ निकाले हैं। इन्हें बनाने का मकसद था कि किंग्स चैम्बर्स के छत पर कम से कम वजन पड़े और वो कोलैप्स होने से बच जाए। इन चैम्बर्स के अंदर इन पिरामिड्स के बनाने वालों ने कुछ लिखा भी था, द गैंग खुफू एक्साइट्स लव, द गैंग होरस मिडुडू इज प्योर, द गैंग वाइट क्राउन ऑफ होमून खुफू इज पावरफुल। बस इन्हीं जुमलों ने हिस्ट्री के बहुत से सीक्रेट्स रिवील किए कि ये पिरामिड्स किसका था, और पिरामिड में काम करने वालों की अच्छी खासी इज्जत थी। वो गैंग्स में काम किया करते थे और वो ये काम एज ए रिलीजियस ड्यूटी समझकर कर रहे थे, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक और टनल की भी दरियाफ्त हुई जो कि इरेगुलर शेप का वर्टिकल टनल था। इसे भी पिरामिड वर्कर्स ने ही बनाया था। अल्तो इसकी इरेगुलर शेप रॉबर्स की कारस्तानी दर्शाता है, मगर आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक से ये साबित हुआ कि ये 4500 साल पुराना ही है और इसे वर्कर्स के लिए एस्केप रूट बताया जाता है। अब ये तो थे ग्रेट पिरामिड के अंदर के वो जगह जहां हम गए हैं, जहां की छानबीन भी हुई है, मगर ये पिरामिड और भी बहुत सारे राज छुपाए बैठे हैं। दोस्तों, 2015 में स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट का आगाज होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि बगैर डिगिंग के, बगैर एक्सकेवेशन के हम ये जान सकें कि पिरामिड के अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।
दोस्तों जाहिर है यहाँ खेती बेलचा का यूज़ तो होना नहीं था, क्योंकि खुदाई पे तो पाबंदी है। यहाँ इम्यून रेडियोग्राफी, थर्मोग्राफी और 3D स्कैनिंग का यूज़ किया गया। फ्रांस, जापान और मिस्र के साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बस 2 साल ही गुजरे थे कि ये स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट रंग दिखलाने लगा। पहले मेन एंट्रेंस के करीब ही एक वॉइड पिरामिड में मौजूद खाली जगह दरियाफ्त की गई यूजिंग इम्यून टोमोग्राफी। ये कहा जाता है कि ये वॉइड तकरीबन 4 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा है, मगर चूंकि इजिप्शियन गवर्नमेंट में एक्सकेवेशन पे सख्ती से मना किया हुआ है, इसलिए हमारे पास बस साइंटिस्ट के दिए हुए अंदाजे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा वॉइड 1 साल बाद 2017 में दरियाफ्त हुआ। इसे बिग वॉइड कहा जाता है। ये पिरामिड के ग्रैंड गैलरी के ऊपर है, मगर साइज में स्मॉल वॉइड से बहुत बड़ा है। की लंबाई 100 फीट के आसपास है और हाइट 20 फीट। इसकी चौड़ाई बस 10 फुट तक हो सकती है। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि इसके बारे में सिर्फ हमें 4500 साल पुराने उन वर्कर्स को मालूम था जिन्होंने इन पिरामिड को बनाया था। यानी बीच के उन 4000 सालों में ये कोई नहीं जान पाया कि यहाँ एक गैप है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर इन लोगों को मालूम होता तो इन्होंने एक रास्ता बनाकर इसे लूटने की कोशिश ज़रूर की होती। हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या होगा, क्या पता कल को यहाँ कुछ ऐसी चीज़ निकले जिससे पिरामिड के बारे में हमारा नज़रिया ही बदल जाए। ये तो तब पता चलेगा जब इस जगह पर इजिप्शियन गवर्नमेंट एक्सकेवेशन की इजाज़त दे, जो कि इन टूल्स से तो क़यामत तक इजाज़त नहीं मिलेगी। क्या पता कल कोई लेस डिस्ट्रक्टिव साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट निकाल लें। दोस्तों, जितना कॉम्प्लेक्स ग्रैंड पिरामिड है उसके मुकाबले में खाफरे का पिरामिड बहुत ही सिंपल है। खाफरे पिरामिड के 2 एंट्रेंसेस हैं, एक ग्राउंड लेवल पर और दूसरा ग्राउंड लेवल से 11 मीटर ऊपर। खाफरे पिरामिड के एंट्रेंस के आगे ही डिसेंडिंग पैसेज शुरू हो जाता है। ग्राउंड लेवल वाले एंट्रेंस के डिसेंडिंग पैसेज के बाद एक हॉरिजॉन्टल पैसेज आता है, फिर एक असेंडिंग पैसेज एक ज्वाइंट कॉरिडोर में दाखिल होता है। ये वही कमरा है जहां अपर एंट्रेंस का डिसेंडिंग पैसेज खत्म हुआ था। ये रूम फिर आगे हॉरिजॉन्टल पैसेज से सीधा बुरियल चैम्बर की तरफ जाता है। यहाँ अब सिर्फ खाफरे का सरकोफागस बचा है। जितना सिंपल खाफरे का पिरामिड है उतना मिनख्वेरे का नहीं है। मिनख्वेरे के पिरामिड के एंट्रेंस के बाद एक डिसेंडिंग पैसेज शुरू होता है जो कि एक चैम्बर को जा लगता है। इसी चैम्बर से दूसरे चैम्बर की ओपनिंग है। फिर एक शार्ट हॉरिजॉन्टल पैसेज हमें ले जाता है एक तीसरे बड़े चैम्बर की ओर, जिसमें 2 और टनल होती है, एक ऊपर और एक सीधा नीचे। दोस्तों, ये अपर टनल तो कुछ ही मीटर्स बाद एक डेड एंड पर खत्म होता है, मगर जो टनल नीचे जाता है ये एक और कमरे में जा खुलता है। ये एक अनफिनिश रूम है जिसमें नीचेस भी हैं। दोस्तों, 4th डायनेस्टी में जब ये पिरामिड्स बनाए गए तब इनकी बहुत हिफाजत की जाती थी, और वो इसलिए कि इसके अंदर उस किंग के मम्मी के साथ ढेर सारा सोना और दूसरे कीमती जवाहरात भी दफन थे, और इसी वजह से रॉबर्स का खतरा हमेशा रहता था। और अगर कोई इन पिरामिड्स में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता तो उसे सब लोगों के सामने मौत की सज़ा मिलती। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब मिस्र की बादशाहत बहुत कमज़ोर पड़ी तो रॉबर्स ने पिरामिड्स को लूटना शुरू किया, और दी ग्रेट पिरामिड में अंदर जाने के लिए जो रास्ता आज टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी उन चोरों का खुदा हुआ टनल है जिसे आज रॉबर्स टनल कहा जाता है। दोस्तों, वो रॉबर्स इस चोरी के सोने को पिघला कर इसकी शेप चेंज करके इसे आहिस्ता आहिस्ता बेच देते, क्योंकि वरना फिर वो पकड़े जाते। खैर, हजारों साल बाद जब मॉडर्न एक्सप्लोरर्स ने पिरामिड्स की छानबीन की तो ना तो कोई मम्मी मिला ना ही कोई सोना, बस चंद ही चीजें पिरामिड के अंदर से मिली हैं, जैसे ग्रेट पिरामिड में एक ग्रेनाइट बाल, एक कॉपर हुक, सिडार वुड प्लैंक और ग्रेनाइट सरकोफागस मिली है। खाफरे के पिरामिड में ग्रेनाइट सरकोफागस, पिरामिड ऑफ मेनक्वेरे में एक बसाल्ट सरकोफागस, वुडन कॉफिन, कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं। इन सब चीज़ों में से कुछ लेटर एडिशंस भी थी, जैसे कि बोन्स और कॉफिन। दी ग्रेट पिरामिड के क्वीन चैम्बर्स के एक एयर शाफ्ट से मिली हैं। इन्हें कंबाइंड डिक्शन रिलैक्स कहा जाता है। कॉपर और ग्रेनाइट बाल तो अभी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं, और सिगार वुड प्लैंक जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अबरदीन को
बहुत पहले दिया गया था वो वहाँ मिस प्लेसमेंट के बिना पर 70 साल तक लॉस्ट रहा। मगर फिर 2020 में यूनिवर्सिटी वाले अपने पुराने सामान की छानबीन कर रहे थे तो उनकी नज़र इस पुराने बॉक्स पर पड़ी जिस पर इजिप्ट का ओल्ड फ्लैग नस्ब था। खोलने पर कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले थे। थोड़ी पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये डिक्सन रिलैक्स का तीसरा मिसिंग पार्ट है। रेडियो कार्बन डेटिंग कोविड के बिना पर डिले हुई, मगर 2021 में जब फाइनली इन वुडन पीसेस को रेडियो कार्बन डेट किया गया तो पता चला कि ये तो पिरामिड से भी 500 साल पुराने लकड़ी के टुकड़े हैं, यानी टोटल 5000 साल पुराने एंटिक्स। दोस्तों, ग्रेनाइट सरकोफेगस दोनों बड़े पिरामिड्स में उसी तरह मौजूद है, मगर 200 साल पहले जब मेनक्वेरे पिरामिड का बेसाल्ट सरकोफेगस डिस्कवर किया गया तो वो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये अनलाइक अदर्स ब्यूटीफुली कार्व था, तो इसे इंग्लिस्तान भेजने का सोचा गया। 1838 में जब ब्रिटिशर्स का शिप बीट्राइस अलेक्जेंड्रिया से इंग्लैंड रवाना होने वाला था तब कर्नल वेस ने बेसाल्ट सरकोफेगस उसी शिप पर लोड किया और मेडिटेरियन सी में कहीं ये जहाज मेनक्वेरे की खूबसूरत सरकोफेगस के साथ ही डूब गए और आज तक वो नायाब चीज मेडिटेरियन सी में कहीं पड़ा हुआ है। वाइस ने मेनक्वेरे के पिरामिड में से डिस्कवर किया हुआ वुडन कॉफन को भी इंग्लैंड भेजा था, मगर किसी और शिप से, और वो सेफली इंग्लैंड पहुंच गया जो कि अब ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। दोस्तों, इन तीनों पिरामिड्स के साथ ही एक और मशहूर 240 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा स्टेचू वाक़ है जिसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहा जाता है। पिरामिड ऑफ खाफरे के साथ साथ किंग खाफरे ने ग्रेट स्फिनिक्स भी बनाई। इस स्टेचू में बॉडी शेर का है और हेड किंग खाफरे का। ये एक ही सिंगल पत्थर को तराश कर बनाया गया था, इसमें मोर्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तभी तो इसे कार्बन डेट नहीं किया जा सकता, मगर ज्यादातर इजिप्शियोलॉजिस्ट इसे किंग खाफरे के जमाने का ही बताते हैं। और इसके टूटी हुई नाक को लेकर भी बहुत बातें गर्दिश करती रहती हैं कि नेपोलियन के सोल्जर्स ने स्फिनिक्स की नाक पर से नेज़ेबाजी की प्रैक्टिस करते करते इसे तोड़ डाला, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। असल में नेपोलियन के पैदा होने से भी पहले की बनाई गई स्फिनिक्स की पेंटिंग से मालूम होता है कि पहले से ही टूटा हुआ है। अलबत्ता एक और किस्सा भी मशहूर है कि 14th सेंचुरी में गीज़ा के कुछ लोकल स्फिनिक्स की पूजा किया करते थे और इसे देखकर एक मुसलमान मोहम्मद साइम अल दाहिर को शदीद गुस्सा आता है और जब इसे मौका मिला तब उसने उस पर चढ़कर आरी से स्फिनिक्स की नाक काट डाली। बाद में पता चलने पर इन स्फिनिक्स के पुजारियों ने साइम अल दाहिर को एज ए पनिशमेंट जान से मार डाला। दोस्तों, इन पिरामिड को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी मौजूद हैं, जैसे कि ये एनर्जी ग्रिल्स थी या फिर एलियंस ने इन्हें बनाया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इन्हें प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों के साथ मिलकर बनाया। लेकिन दोस्तों, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के जो हमें अच्छा लगे ये मानना हरगिज अक्लमंदी नहीं होती। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आखिर बनते कैसे हैं? वेल, जब हमारे पास किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब उस नॉलेज के गैप को फिल करने के लिए बहुत से लोग खामोखा अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं और कुछ अंदाजे मशहूर भी हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाखों लोग इस बात पर बिलीव करते हैं और इस तरह एक झूठ बहुत सारे लोगों की नज़र में सच बन जाती है। दोस्तों, मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक खुफू के पिरामिड को 30 से 40 हजार लोगों ने 20 से 25 साल के अरसे में बनाया। खाफरे को 20,000 लोगों की मेहनत से 20 साल में बनाया गया और मेनक्वेरे को 10 से 15,000 वर्कफोर्स ने 15 साल के बाद मुकम्मल किया। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि जब इंसान हिम्मत, जज्बे और लगन के साथ काम करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर 23 लाख 2.5 टन वजनी पत्थरों से पिरामिड खड़ा करना हो या फिर 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर जाना हो, इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों, हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री भी मून लैंडिंग पर है। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।